Okay. So first thing is how do to add the money round off. So at that particular time, where is the index? So what our strategy does, what the code does. So we have defined certain times at which we are taking entry. तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वो इंडेक्स को चेक करता है, कहाँ पे इंडेक्स, वेयर इज द इंडेक्स. तो इंडेक्स उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं. सो इट बेसिकली चेक्स वेयर इज द स्पॉट. तो वेर एवर द स्पॉट इज, उसके जो नियरेस्ट वाला स्ट्राइक होगा उसे वो सेलेक्ट करेगा और उसे सेल सेल करेगा. So we do sell. So sale is always at the money, but we also have to buy something. Now, why are we buying this? That is the question which I asked to Tapaswani, right? Why are we buying it? So we are adding buy in our strategy for, I would say, for two reasons, if you ask me. Reason number one is we want to do more with less capital. Okay, we want to do more with less capital, because if you don't buy options, if you only sell options, right, then in FinNifty you will be able to sell for 1 lakh rupees one lot, 40, right? Correct. So in that case, if your capital is 3 lakhs, you won't be able to sell much, right? But why? Because risk is unlimited when you are only selling. So risk is unlimited toward this side also, toward this side also. Like look at the example of today. So you are selling an option at 30 rupees, 20 rupees, but you saw where the price went. So risk is unlimited, na? Clear, na? So that is why broker will take more margin. But when you with sale, if you are buying an option, sale के साथ आप एक buy भी कर लेते हो उस direction में, so then what happens? Your risk becomes limited to the extent of the distance between buy and sell. अभी unlimited था, यहां से लेके एंड तक था. अभी मैंने इधर पे बाय किया. So whenever I'm buying this and selling this, what happens when the price will move, right? So it will move. Buy will give you profit, sell will give you loss. Correct? Got it, na? So which means now broker will release the margin. He will not take that margin which he is taking. So he will release the margin. Once your margin is released, you can add more buy, add more sell, add more buy, add more sell. So जो भी आपके कैपिटल में मैक्सिमम ले सकता हम निकाल सकते हैं उससे. Got it, ना? Now what will happen? Most of the days, 99% of the days, the buy that you do will give you loss only. Why? Because ये काफी दूर का buy है. You know, it is out of the money buy. इसको हम बोलते हैं out of the money. Market is trading here. For put, we are taking buy which is 7 strikes below. 1 strike, 2 strike, 3 strike. 7 strike means 350 points के नीचे का हम ले रहे हैं. मार्केट यहाँ पे हम उसके 350 पॉइंट नीचे ले रहे हैं और उसके 350 पॉइंट ऊपर ले रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द डेज तो दैट 350 मूवमेंट इज नॉट गोइंग टू हैपन. करेक्ट ना? सो दैट ऑप्शन विल गिव यू लॉस ओनली, बट वी आर ओके विथ इट बिकॉज हम थोड़ा सा लॉस लेके उसमें ज्यादा क्वांटिटी भी तो सेल कर रहे हैं. करेक्ट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिवरेजिंग. दिस इज कॉल्ड एज लिवरेज. टू लिवरेज समथिंग, कम चीज से ज्यादा आउटपुट निकालने को लिवरेज बोलते हैं. राइट? Like you do screwdriver. Why you do use screwdriver? Because you can easily do the thing. Can you do the same thing with your hand? No. नहीं कर रहे. तो सेम थिंग राइट ना, हम लिवरेज कर रहे हैं, कम एफर्ट लगा के ज्यादा पैसा बनाएंगे. ये हो गया. सेकेंड पर्पस इज ऑल्सो hedging. Why? Because let's say some days when your stop loss does not get hit or anything happens, let's say you're not able to do any buy also, let's say your trade gets carried forward to the next day also, some big gap up gap down happens, so at least your loss will be limited to the extent of 350 points only, right? Yes. Not more than that. For example, because market movements can go to 1000 point also, but here you will be your loss will be restricted to only 3, because after that buy that you have done, that is going into profit. सेल इज गिविंग लॉस, बाय इज गिविंग प्रॉफिट. तो वो चलता रहेगा. बट ये जो 350 पॉइंट का डिफरेंस है वही आपका लॉस रहेगा. दैट 350 पॉइंट्स ओनली. सो रादर देन लूजिंग इंटायर कैपिटल, यू हियर इन दिस केस विल बी लूजिंग 50,000, 1 लाख ओनली. इज दैट क्लियर? वन साइड. दोनों साइड में तो कभी एक साथ होगा नहीं, एक साइड. तो मैक्सिमम दैट मच इज व्हाट यू विल लूज. तो हेजिंग एंड लिवरेजिंग समझ में आया? तो 99% ऑफ द डेज वी आर डूइंग लिवरेज. We are not doing this for hedging, because hedging हमें पता है इंट्राडे में जो भी होता है अपने आंख के सामने ही होता है. तो nothing like that, right ना?
गॉट इट ना? सो दिस इज द स्ट्रैटेजी. तो अब क्या होता है, जब हम सेल करते हैं, वी हैव टू सेल, राइट? एंड तो बिफोर सेल यू हैव टू डू बाय, बिकॉज आप बाय करके सेल करके बाय नहीं करोगे. बिकॉज इफ यू अटेम्प्ट अ सेल बिफोर यू हैव बॉट एन ऑप्शन, more margin will be required and you will get an error if you are giving more quantity. Clear? Everyone clear with this? Yes. So what we have to do, हमें पहले buy लेना. तो the moment you buy an option, तो system will check, okay, you already have a buy, now you are attempting a sell, so it will take less margin. Clear? तो इसीलिए आप देखो जो हमारे strategy Excel फाइल है, उसमें buy is happening 1 or 2 minutes before the sale is happening. Clear? Yes. Clear na? So that is very important. So your buy and sell is in the same ratio. That's why I have kept it at same ratio. Now call side में भी करना है, put side में भी करना है, दोनों साइड में करना है. तो हमारा जो सेल होता है वो always at the money पे होता है. That is called as a short straddle. The technical name for what we do is short straddle. STRADDLE. ये हम करते हैं, short करते हैं straddle को. ठीक है? Clear? Now, after you sell both call and put, what will happen? See, market if it remains sideways, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ठीक है? You are selling an option, which means there will be theta decay, time decay तो होगा ना ऑप्शन के अंदर में. और एट द मनी में क्या होता है, सबसे ज्यादा डिके मिलता है आपको. अच्छा फैन प्लीज करना, ठीक है? एट द मनी में आपको ज्यादा मिलेगा. तो क्या होगा, मार्केट डज नॉट गो एनीवेयर. तो आप देखोगे जो आपने सेल किया उसमें कॉल में भी प्रॉफिट, पुट में भी प्रॉफिट दिखने लगेगा आफ्टर सम टाइम. बट व्हेनेवर मार्केट गोज इन वन डायरेक्शन, इधर अप और डाउन, तो आपका एक पोजीशन में लॉस ज्यादा आएगा. क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes. नाउ व्हेन यू आर सेलिंग एन ऑप्शन एट कॉल एंड पुट, तो हर ऑप्शन का प्राइस होता है, करेक्ट ना? तो यहाँ पे कॉल का भी प्राइस होगा, पुट का भी प्राइस होगा. तो मोस्टली अगर मार्केट स्पॉट एकदम स्ट्राइक के पास हो एग्जैक्टली लिट से, तो मोस्टली द प्राइसेस विल बी मोर और लेस इक्वल, बट मे नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल, बिकॉज कभी पुट साइड में बायस ज्यादा होता है, कभी कॉल साइड में बायस ज्यादा होता है. तो उसके वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन प्रीमियम. तो एक तो ये रीजन होता है प्रीमियम के डिफरेंस होने का. दूसरा रीजन होता है कि आप जब ये ऑप्शन ले रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो, तो मार्केट एग्जैक्टली कहां पे था. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मार्केट इज नॉट एग्जैक्टली एट योर स्पॉट, मतलब वो स्ट्राइक के पास नहीं होता. फॉर एग्जांपल 19,600 पे नहीं है मार्केट, मार्केट इज एट 19,624. तो 24 का मतलब क्या हुआ, ये जो कॉल का स्ट्राइक है इससे मार्केट ऑलरेडी 24 पॉइंट्स अहेड है. तो ये जो कॉल का ऑप्शन का जो प्राइस होगा वो पुट के ऑप्शन के प्राइस से काफी ज्यादा होगा. सो देयर विल बी डिफरेंस. फॉर एग्जांपल कॉल विल बी अराउंड 54, तो पुट विल बी अराउंड 30 ओनली. सम डेज यू विल सी बोथ आर 35. तो ये डिफरेंस आपको दिखेगा. ऑब्जर्व किया आपने? लेट्स से इफ द मार्केट इज ट्रेडिंग एट 19,626, तो जो सबसे ज्यादा प्रीमियम का डिफरेंस होता है वो तब होता है जब मार्केट बॉर्डर लाइन पे होता है. मतलब जैसे 19,600 और 650 के बीच में 625 आता है. तो अगर वो 624 पे है या 626 पे है और वहां पे हमारा ट्रेड हो रहा है ना, तो आपको प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा. बिकॉज 26 वाले केस में 50 वाला सेलेक्ट होगा और 24 वाले केस में 200 वाला स्ट्राइक सेलेक्ट होगा. क्लियर हाउ द स्ट्राइक गेट सेलेक्टेड? एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर कैन बी डिफरेंस इन प्रीमियम्स. हमारे लिए आइडियली प्रीमियम सेम होना चाहिए. अभी प्रीमियम में अगर डिफरेंस है तो क्या करें? कुछ नहीं करना. इट इज टोटली लक की बात होती है. जैसे इफ यू लुक एट टुडेज मार्केट, व्हाई प्रॉफिट वाज मोर, बिकॉज व्हेन द ट्रेड हैपेंड पुट का ऑप्शन काफी ज्यादा था प्राइस कंपेयर टू द कॉल ऑप्शन. डिड यू ऑब्जर्व दैट? क्या आपने ऑब्जर्व? तो अगर पी का ऑप्शन प्राइस ज्यादा है और वो जीरो पे जा रहा है, तो क्या होता है कि आप जिस साइड में, अभी वो कैलकुलेशन से मैं आपको दिखाता हूं. सो दैट इज व्हाई दिस एक्सेल फाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे देखो हमने यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे डाल दिया. सो ये रहा आपका ऑर्डर बुक. पहले तो आपको ये ऑर्डर बुक देखना है, डैशबोर्ड में जाना है, ट्रेड्रॉन के डैशबोर्ड में जाओगे और यहाँ पे आपका ऑर्डर बुक दिखेगा. इस ऑर्डर बुक में आपके सारे ट्रेड्स आ जाएंगे. ठीक है, ऑल द ट्रेड्स स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम. तो फर्स्ट 9:45 में ये बाय हो रहा है आपका.
सो ये हाँ किसने पूछा था, चंदन और someone asked कि how do we know which is buy. So see, whenever you are selling an option it will come with minus, Okay, whenever you are buying an option it will come with plus. So got it. the plus will become minus later and the minus will become plus. Got it. So entry time, now if you check the Excel, right, so in this Excel we are not monitoring the buy one, ठीक है, उसको हम नहीं कर रहे, we are only monitoring the sell one, Sell. because sell is where we are making money. So if you see this two transaction, first two transaction, 947, 19,600 strike has been selected, where you can see there is lot of difference in the premiums. Yes. So P premium was 51.8. What can be the reason for this? The reason is market was actually not around, it would be around 19,576, somewhere around that. Because of which P premium was high, call premium was low. Because call was out of the money, P was in the money at that point of time. 947. So if you see 947, so you can see market was यहाँ पे था 19564. Can you see my cursor? See where market is? 19564 on the right side. On the right side you can see the index in the black. Can you see? Can you see that index? Yes. Yes. Huh? Yes. Yeah. It's moving. कहाँ पे 19565 let's say. 5. Yeah. So because it is 19565, so that is why जो call का option तो अभी 600 तो काफी दूर है ना, right? But from put perspective, it is already inside. So this option is in the money for put, but out of the money for that, right? But actually round off करेंगे तो at the money 600 ही बन रहा है. But there will be difference in premium. We know that. So it is okay. जो भी आएगा it is all probability. तो जो आएगा ले लेना है अपने को, ठीक है? So this is what was selected. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्राइस एंट्री कर देंगे. This is entry price. So you will enter the price here. You are supposed to just enter the price. तो आप यहाँ पे प्राइस एंट्री करो. कॉल का ये P है ना, P का 51.8 और ये मैंने स्ट्राइक डाल दिया. कौन सा स्ट्राइक है? Yes. और ये कॉल का प्राइस क्या है? 22.25. So the moment I enter the price, automatically the stop loss will get calculated in this Excel file. So we know कि अच्छा कॉल का, so you can see कि अगर कॉल आपका हिट होगा let's say, तो how much you are going to lose? Around 10 points or 11 points, correct? Yes or no? Yes. So you can already calculate कि अच्छा हुआ, अगर इसका stop loss hit होगा तो I will lose 11 points. और अगर put का stop loss hit होगा तो how many points you are going to lose? 27. 27. 27, 26 let's say, ठीक है? 52 से 78, 26 ले लेते हैं. तो अब आप बताओ, एक केस में मैं 11 पॉइंट्स लूज कर रहा हूँ, एक केस में मैं 26 पॉइंट लूज कर रहा हूँ. सो मेरे लिए आज क्या होना चाहिए? अगर स्टॉप लॉस जाना ही है तो किसका जाना चाहिए बताओ, टेल मी. 11. C. 11. C. सी का जाना चाहिए. सी का जाना चाहिए, राइट ना? तो ये पहला आपका ऑब्जर्वेशन होता है. हाँ, आज ना अगर कॉल का गया तो कोई टेंशन नहीं है, पी का नहीं जाना चाहिए. बिकॉज अगर पी का गया ना तो मैं तो, क्योंकि पी जाने से होगा क्या मैं बता रहा हूँ. सी, वन ऑफ द ऑप्शंस विल बिकम जीरो ऑलवेज on expiry. When you are selling both this option, one of the option will become zero. 100%. 100%. मतलब ये हो ही नहीं सकता कि दोनों में से कोई जीरो ना हो. एक को तो जीरो होना पड़ेगा. हमारा बेस्ट केस है दोनों जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए. बट वो रेयर होता है. वो तभी होता है जब मार्केट 19,600 पे एक्सपायर करे एग्जैक्टली. बट ऐसा होता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे होता है या काफी आगे पीछे होता है, ठीक है? तो नाउ माय वर्स्ट केस कैन बी, अगर मान लो ये इसका स्टॉप लॉस हिट होगा, आई विल लूज 11 पॉइंट्स. तो ये कहाँ पे जाएगा? ये मुझे पूरा जीरो बन जाएगा, राइट? इफ दिस स्टॉप लॉस इज हिटिंग, okay, if this stop loss is hitting, so 51.8 will become zero, which means I can make 52 points, but I will lose 11 points. So which means I can make net on net 440 points. 40 points अगर 300 क्वांटिटी पे मैं कमाऊंगा तो कितना अर्निंग होगा मेरा? 1200. 12,000 होगा, राइट? अगर हम 320 क्वांटिटी ले रहे हैं तो, ठीक है? बट अगर मान लो मेरा
पी का एसएल चला गया, ठीक है, तो 26 पॉइंट चला जाएगा मेरा, 26 पॉइंट इज व्हाट आई विल लूज यहाँ पे ये वाला, और मुझे मिलेगा कितना, इतना ही तो मिलेगा 22.25। तो विच मीन्स अगर पी का एसएल गया तो आज तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो भूल जाओ, क्योंकि एनीवे यू आर 4 पॉइंट्स, तो तब भी आपका डिफरेंस है, प्लस बाई का लॉस अलग होने वाला है एक एक पॉइंट, तो 4 + 2 6 पॉइंट, 6 पॉइंट को आप 300 से मल्टीप्लाई कर दो, 1800 का लॉस होगा आपका। ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए। अगर मेरा सी का एसएल जाएगा तो दिस मच जाएगा, पी का जाएगा तो ये होगा, ठीक है, और कोई भी एसएल नहीं जाएगा तो दोनों तरफ से पैसा आएगा, और दोनों एसएल जाएगा तो कितना होगा, वो भी तो केस हो सकता है ना। Amin ji, can Are you you share getting one this? more Huh? time that spreadsheet? Can you share one more time a spreadsheet? हाँ, आई एम शेयरिंग। मैं थोड़ा बीच बीच आप लोग को दिखता हूँ, कितने लोगों ने वीडियो ऑफ कर लिया जब मैंने एक्सेल पे गया था, इसीलिए मुझे बार बार इधर आना पड़ता है। ठीक है, सो ये तो जैसे आपने 0 लिखा है एग्जिट प्राइस फॉर पी के लिए कि एंड ऑफ डे का, राइट? लेकिन आज के केस में जैसे हम लोग कुछ पहले एग्जिट कर गए तो एग्जिट प्राइस वहां पे डालना हाँ, है, अगर right? आप पहले कर गए तो आप जिस टाइम पे एग्जिट कर रहे हो वो लिखोगे आप, करेक्ट। वो प्राइस, राइट? हाँ, जैसे अभी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 22.25 जो कॉल था वो गया आपका 33.15 पे, जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली, मतलब एसएल होना चाहिए था ये, बट एक्चुअली एक्सिक्यूशन हुआ 15 पे, ठीक है। 51.8 जो था वो चला गया 0 पे, करेक्ट ना। इसका एसएल 78.2 होता, बट ये यहाँ तक तो गया ही नहीं प्राइस कभी भी, तो हमारा एंडिंग हुआ 0 पे, करेक्ट। अब दूसरा So, स्ट्रेटजी, because you didn't exited, right? Till बिकॉज end आई डिड you नॉट didn't. एग्जिटेड। आप देखो, अगर मेरा ये जो यहाँ सपोज पे, सपोज मैंने एग्जिट कर लिया तो वो अगर उस आपने एग्जिट कर लिया तो आप अपना वहां पे प्राइस डालो, प्राइस, हाँ, हाँ, कि मैंने इतने पे एग्जिट किया, ठीक है। या पर अगर आप ट्रेट्रॉन से वेरीफाई करो तो आप ट्रेट्रॉन का डेटा डालोगे, वो यही दिखाएगा। करेक्ट करेक्ट, हाँ, और फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप देखो ये 160 हो गया ना, फिर हम लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, अगेन टू गेट द मार्जिन फर्स्ट हम बाई कर लेते हैं, और फिर आफ्टर 2 मिनट्स वी आर सेलिंग। तो जब हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे सी का प्राइस है 44.45 और पी का प्राइस है 28, तो थोड़ा सा प्रीमियम बैलेंस हो गया हमारा। अभी जैसे यहाँ पे सी कम था, अब सी बड़ा हो गया, अभी यहाँ पे पी ज्यादा था, अभी पी कम हो गया, करेक्ट ना। तो ये होता है फायदा जब हम दो स्ट्रैडल सेल करते हैं अलग अलग टाइम पे, गॉट इट, तो थोड़ा बैलेंसिंग हो जाए, क्योंकि मार्केट तब तक आगे पीछे हो चुका होता है। सो अभी इस केस में क्या हुआ, सेकंड वाले स्ट्रैडल में अगेन कॉल का एसएल गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आपका एसएल जाता है तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर लूजिंग, अराउंड 20 पॉइंट्स, और यहाँ वाला एसएल में आप कितना पॉइंट्स जाएगा आपका, अराउंड 12 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स। तो कौन सा, तो नेट और नेट अगर आप सबको कैलकुलेट करते हो तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट होने से 20 + 11 31 पॉइंट जाएगा, पुट का स्टॉप लॉस हिट होने से 40 पॉइंट जाएगा, तो थोड़ा सा बैलेंस हो गया हमारा 40 वर्सेस 31। मैंने आपको क्या बताया, आइडियली इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने से क्या होता है ना, कि अगर एक तरफ एसएल हिट हुआ तो मैं दूसरी तरफ अगर 0 जाए तो मैं कम से कम कुछ पैसा बना के निकलूं, ठीक है। क्लियर है ये लॉजिक? यस। Okay, so now if I do this, see what is my net profit, 7068, ऑटोमेटिकली आया ना ये 7068। Can you see this 7068? Now what is Yes. the quantity here, 160 and 80। तो आपको अगर आपके एक्सेल फाइल में चेंज करना है तो all you have to do is just check and change as per your category। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी सी के लिए डाला हुआ है, तो 160 फॉर स्ट्रैडल 1 एंड 80 फॉर स्ट्रैडल 2, तो उसके हिसाब से ये प्रॉफिट होता है 7068। बट व्हाट इज माय एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट एज पर दिस इज हाउ मच, 6676। तो कितने रुपीस का डिफरेंस है? 324। अब आपके मन में आएगा ये 324 कहाँ चला गया? ये चला गया जो हमने बाय किया था ना, वो तो 0 पे हो गया, तो इन दोनों को ऐड करो आप, 264 गया यहाँ पे, लॉस हुआ, करेक्ट, और ये वाले में 110, तो ऐड कर दो, अराउंड मिला जुला के वहीं पे आ जाता है, करेक्ट, थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो यू गॉट इट ना, हाउ दिस इज कैलकुलेटेड? Amit, sorry for interruption.
You told the pricing would be negative. Which price? The prices, if it is a put sell, the prices would be negative. Am I right? Price will, LTP. no. Why negative? Like, see, you are selling a put, you are selling a call. Okay. Yes. So one thing, see, when you sell something, then you will come in profit when the price go down. Yes. When you buy something, you will be in profit when the price goes up. So in the case of call, if you look at this thing, it shows loss. Why? Because the Loss. prices went up. It took the Okay. stop loss. So it is showing negative. In Yes. case of put, because market went up, the put was coming down, and we had sold it. So we Sold sold it, yeah. at a higher price and we booked at lowest price, 0. So which means So it is showing positive, green. positive. Premium got because Because premium was premium will go. See, yes. expiry means market, all the strikes will end at intrinsic value. Intrinsic Got value. So intrinsic value means, for example, where did the market end today? Let's see that. So all your learning now, what you have learned in option, this is where it is practical. A problem is a lot of people don't even learn properly. See, the market of for Fin Nifty ended at 19788. So which means the option which we sold in the morning, 19,600, right? Yes. So 19,600 option we sold, market ends 19788, which means the call option 19,600 will end at 188. Yes. Because just minus 19788 minus 19600. So 188 is the intrinsic value for that option. But we exited at 60 only. Yes. Got We it? exited by 2 o'clock. Yes. Now market is 19788. We sold put option which is here. So right now for put option to have some value, market should have come here. Come down. Yes. But market was here, na? So it will become 0. Got it? Got it. 0. It becomes 0 right now. So all the options after 700, like 19,800 call option, that will become 0. But even 19,750, it will end 38 rupees because 19788 minus 19750. So 38 rupees. So that is how when the market is moving towards expiry, you can easily calculate which option can end at what price. What? And that is what is called option pricing. तो अभी ये बताओ सबको ऑप्शन का प्राइस समझ में आता है, कैसे निकालते हैं, कहां पे एक्सपायरी होगी, कौन सा ऑप्शन कहां पे एंड करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है. If you are not understanding, watch the videos. There are so many videos I've made now on option pricing. Correct? So then only you will understand the calculation. Clear? Is this part clear? So, so what you can do is, if you have this Excel file, if you watch this Excel file, you can understand कि which scenario is favorable for you today. Call hit करना मेरे लिए favorable है, put hit करना, देखो कुछ नहीं hit करे तो best है. But अगर किसी एक को hit करना है तो उधर ही hit करे. तो knowing this, you know, it's just fun. आपको थोड़ा पता होता है. Some days both will also hit. Market will go this side, then it will come that side. But in that case also, you know, कि यहाँ पे अगर आप Excel खोल के बैठोगे ना, तो you can know कि what can be your maximum loss today. For example, let's say आज market में हमारा ये stop loss hit हो गया, ठीक है? Now, what is the logic for this stop loss? Once this stop loss was taken away, how much we could have lost in this option? We would have exited at 52, isn't it? कितने पे एग्जिट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे तो 50 कॉस्ट प्राइस से भैया तो जैसे कॉस्ट प्राइस से ऊपर जाता है ये ऑप्शन, लाइक हमने एंट्री किया 51.8 पे, तो द मोमेंट दिस ऑप्शन रीचेस 52 वी विल एग्जिट. तो इफ वी आर एग्जिटिंग, तो यहाँ पे कितना लॉस है? जस्ट -32. आज मैं आपको वर्स्ट केस दिखा रहा हूँ. अगर मान लो आज बुरा से बुरा होता तो हम कितना पैसा गवाएंगे? -32. यहाँ पे तो वी ऑलरेडी लॉस दिस मच. यहाँ पे हम कितना लॉस करते हैं? इन दिस केस वी आर नॉट ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस, हम पूरा इसके एसएल पे जा रहे हैं, राइट? तो इसका एसएल कितना होगा? 41.2. तो लेट से 41.5 पे हमारा एसएल हिट हुआ था, तो आपका मैक्सिमम लॉस होता 4,572 रुपीज प्लस 300-400 ऐड कर लो आप बाई साइड का.
So 5,000 is what you will lose on a capital of 6 lakh, which means you can only lose 1% a day. ये 3 लाख का है ना 160 का, क्या? ये 3 लाख वाले का है ना? नहीं, ये 3.2 वाले का है, कैटेगरी सी। हाँ कैटेगरी से तो 3 लाख कैपिटल पे मतलब इतना लॉस करते हैं 2 लाख 5,000 नहीं है क्या? कैटेगरी सी 3.5 लाख है ना, वो 3.2 I'm लाख। saying 3 only. हाँ, I'm saying 3 only. क्या बोल रही हो? आवाज थोड़ा तुम्हारा ना ब्लड आ रहा है। Anyway, 3.2 lakh you can lose how much? अभी क्या कैलकुलेट किया? 4,500, ठीक है। तो अगर 3.5 लाख है तो मैं तो मतलब 1.5% इज व्हाट आई कैन लूज मैक्सिमम। दिमाग में ये डाल लो। तो आपका लॉस, अब आपको ये पता है कि ये मेरा वर्स्ट केस है, इससे ज्यादा तो मैं गवा ही नहीं सकता। अभी मान लो एनी टाइम आपके स्क्रीन पे 4,000 दिख रहा है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि निकल जाता। अरे पागल हो क्या, क्यों निकलोगे? तुम्हारा मैक्सिमम लॉस तो 4.5 होगा, 4,500। ऑलरेडी यू आर 4,000, व्हाई यू आर एग्जिटिंग? मतलब कोई पॉइंट ही नहीं ना एग्जिट करने का, बिकॉज वही आपको तो जब तक आपका वर्स्ट केस हिट नहीं होता, यू हैव टू बी इन द ट्रेड, बिकॉज मार्केट विल रिवर्स। बट बेस्ट केस क्या था ऑन दिस ट्रेड? बेस्ट केस कैन बी, नाउ व्हाट इज द माय बेस्ट केस, इसको भी दिखाता हूं। योर बेस्ट केस कैन बी सम डेज व्हेन मार्केट विल नॉट गो एनीवेयर, मार्केट विल बी ट्रेडिंग थ्रू आउट हियर एंड देयर। तो ये भी आपका जो एग्जिट होगा, ये भी 0 पे चला जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा। सम डे दिस कैन आल्सो हैपन। तो दिस इज योर बेस्ट केस 17644, which means on a capital of 3.5 lakh I can make 16,000। तो कितना परसेंट हुआ? ऑलमोस्ट 5%। Yes, almost 5%. तो 1.5% का लॉस है हमारा, 5% का प्रॉफिट हो सकता है किसी भी डे में। तो रिवार्ड इज वेरी हाई, रिस्क इज नॉट सो मच। दैट इज व्हाई आई से यू शुड नो हाउ मच यू कैन लूज, दैट विल गिव यू द करेज टू बी इन द ट्रेड। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है बहुत गवा सकते हैं, बट एक्चुअली हम गवा नहीं पाओ, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो वैसी बनाई गई है ना। डिड यू अंडरस्टैंड? आप ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं कोई क्या रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ। मतलब यू शुड बी एक्साइटेड। ओ वाओ, समझ में आया? जी भैया। यही तो मैजिक है, कल जो आप बता रहे थे ना, लेके जाएगा। हाँ, कल जो आप 77,000 वाला जो कल बता रहे थे ना, वो 30th मई को फिर निफ्टी एक्सपायरी में कॉल एंड पुट दोनों 0 गया था, उस पे था। हाँ, सो दैट डे सेम थिंग हैपेंड, नो स्टॉप लॉस वाली हिट जहां पे ट्रेड, और उस समय विक्स हाई था। तो जैसे अभी हम एंट्री 22 रुपए और 50 रुपए पे कर रहे हैं ना, उस समय एंट्री हुई थी 130 120। अगर आप प्रीमियम चेक करोगे तो इट मस्ट बी वेरी हाई, राइट? तो और अगर 6 लाख कैपिटल पे देखें तो 34,000 होता है, राइट ना? तो प्रीमियम को डबल कर दो आप, मतलब एक साइड में 45 है, एक साइड में 100 रुपीज है। एंड बिलीव मी, सम सच डेज विल हैपन इन फ्यूचर, आएंगे ऐसे दिन। बट आपको हमेशा याद रखना है, हर दिन आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो इतने ही है। यू कैन मेक 5%, यू कैन लूज 1.5%। तो उससे क्या होता है, अगर 3 एक्सपायरी में आपका डबल एसएल भी हिट हुआ, लेट से आज भी डबल एसएल हुआ, आज भी हुआ, आज भी हुआ, यू शुड नेवर पैनिक, बिकॉज वन गुड एक्सपायरी विल कवर इट ऑल। ये दिमाग में बैठा हुआ। कई बार क्या होता है ना, हम अरे यार ये क्या स्ट्रेटेजी है, बकवास है, तो लॉस ही दे रहा है, लॉस ही दे रहा है, लॉस ही दे रहा है। बट आपको पता नहीं उसका पावर, एक दिन में सब लॉस कवर कर देगा। बट आप देखो, ये मैथमेटिक्स है। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, आप लोगों ने ये सब चीजें नहीं समझा है। यू गाइस आर जस्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, बट हम मैथमेटिक्स नहीं देख रहे हो। ट्रेडिंग का मतलब आप ना मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नो वन नोज। अभी देखो इतने लो वीक्स में 500 पॉइंट्स का मूवमेंट दे रहा है मार्केट, तो कैसे ट्रेड करेगा आदमी को? लाइक, बट आप सिस्टम पे ट्रेड करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी करने दो मार्केट को, नाचने दो, जिधर जाएगा सांप सीढ़ी खेलता खेलने, मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं गंवाने वाला हूँ। दैट इज मच बेटर ना, यस और नो? वरना आप डिस्क्रिप्शन करने जाओगे, आप उधर वहां बेचोगे, फिर वो और ऊपर जाएगा, यू विल बी स्क्रूड लाइक एनीथिंग, साइकोलॉजी विल गेट। तो दैट इज व्हाई सिस्टम ट्रेडिंग इज द ओनली होली ग्रेल। अगर आपको ना पैसा कैसे बनेगा, मेरे इफ यू आस्क मी, नथिंग वर्क्स अदर देन जस्ट ट्रेडिंग एज पर सिस्टम। नाउ वन थिंग आई विल टेल यू, व्हेन आई से exit, why do I say exit?
यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑल द ओल्ड पीपल मतलब जो काफी टाइम से ट्रेड करो, दैट मैसेज इज नॉट फॉर यू, क्योंकि आपको तो पूरा सिस्टम होल्ड करना है। क्योंकि देखो अभी फॉर एग्जांपल संदीप स्टार्टेड न्यू, चंदन स्टार्टेड न्यू, हरी स्टार्टेड न्यू। सो देखो नए लोगों का साइकोलॉजी थोड़ा अलग होता है। जब लोग नए नए आते हैं ना, प्रॉफिट देखना चाहते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि मैं पहले 2-3 दिन लॉस हो जाए। तो मेरा इंटेंशन क्या होता है, मेरे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आई लुक एट रिस्क रिवार्ड। तो जब मुझे लगता है कि अगर संदीप 6 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहा है और अगर मार्केट ने उसको 1% दे दिया है तो उसको निकल जाना चाहिए, बिकॉज लेट हिम फर्स्ट क्रिएट सम कुशन ऑफ प्रॉफिट सो दैट ही गेट अ फील गुड फैक्टर कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। और जब वो, ताकि इसके बाद अगर उसको लॉस झेलना पड़े ना तो उसके प्रॉफिट से जाएगा, उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। इजंट इट? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके मैं वो गाइडेंस दे देता हूँ कि निकल जाओ। जैसे कल बोला निकल जाओ, निकले, उसका प्रॉफिट आधा हो गया, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा अरे सिस्टम पूरा करना चाहिए था, सिस्टम ने ज्यादा पैसा दिया, बट आप लोगों ने देखा नहीं है। पुराने लोगों से पूछो क्या होता है, आखिरी 15 मिनट में पूरा प्रॉफिट चला जाता है। 3 बजे तक 12,000 है, 12,000, और 3 to 3:30 में गया -12,000, डबल एसएल। हुआ है कि नहीं हुआ है? हैव यू सीन दैट? ये देखा है वो। राइट ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि पैसा टेबल पे आ गया ना, 2-4 हजार रुपए कम लेंगे चलेगा, लेकिन जो आया उसको लेके चले जाओ। तो ये होता है कॉमन सेंस। लेकिन कॉमन सेंस को लगाने के लिए वेट करना पड़ता है। 2 घंटे ट्रेड करके कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, बिकॉज अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू मेक 74,000। और एक चीज याद रखो, एक्सपायरी में हमेशा अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा ना तो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा 130 से 330 के बीच में, ऑलमोस्ट डबल होगा। मतलब आपको 130 पे अगर प्रॉफिट दिख रहा है 6,000, आप अगर पूरा होल्ड करोगे तो डबल होने वाला है। तो वो चॉइस होता है मुझे करना क्या है, पैसा डबल करना है या जो आ रहा है लेके निकल जाना है, राइट ना? तो मैं मेरे कहने मतलब कि लॉन्ग रन में और इवेंचुअली नाउ यू शुड जस्ट लीव इट, बिकॉज इस सिस्टम में क्या है ना, आप अगर छोड़ोगे भी ना, ठीक है हो जाने दो, प्रॉफिट से लॉस जाने दो, कितना लॉस जाएगा, इतना ही जाएगा ना। उसी लॉस को लेके एक हैबिट क्रिएट करके आप लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिट भी बनाओगे, where you are not quitting. Because you are not quitting, market will reward you. समझ रहे हो? क्योंकि देखो कई बार 10 रुपए का पुट 0 पे जाएगा, कई बार 10 रुपीज, द पुट विच इज ट्रेडिंग एट 10 रुपीज जो आपके, वो वहां से स्टॉप लॉस भी जाएगा। जिस दिन स्टॉप लॉस को जाएगा ना उस दिन बहुत पेन होएगा कि अरे यार 10 आ तो गया था, प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप मत लो, आप ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस, बट देन ऑल्सो रिमेंबर इफ यू कीप डूइंग दिस वन डे यू विल ऑल्सो लूज। बट आप कितना और प्रॉफिट कर सकते हो, यू कैलकुलेटेड, वो आपको आना चाहिए। जैसे मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, लेट्स से मेरे पास 300 क्वांटिटी पी सोल्ड है, ठीक है, और अभी वो पी मेरा 7 रुपीज पे आ गया है, 7 रुपीज। तो आई नो कि यहां से मेरे को 2,000 का प्रॉफिट और मिलेगा, बस। क्लियर? समझ में आ रहा है? बिकॉज 7 मल्टीप्लाइड बाई 300 हाउ मच? 22,000 रुपीज। और चांसेस क्या है? चांसेस ये है कि अगर मार्केट ने यहां से एक उल्टा मूव दिया तो दिस 7 रुपीज कैन गो टू 50-60 ऑल्सो, लाइक टुडे यू सॉ ना कॉल ऑप्शन कैसे भाग रहे हैं। तो मैं एज अ कॉमन सेंस, व्हाई टू रिस्क माई ऑल माई प्रॉफिट जो पूरे दिन आया है फॉर लास्ट 30 मिनट्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा बुक कर लो। दैट इज कॉमन सेंस फॉर मी, वेर आई नो कि 2,000 इक्वल 2,000। हाँ, बट अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं ये पी अभी 20 रुपीज पे है, अभी ये 0 पे जाएगा तो 20 into 3 6,000 मिल सकता है, तो मैं रिस्क लूंगा वहां पे, आई विल वेट। ठीक है ना? कितना 20 है, तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट योर ओन रिस्क रिवार्ड। दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स। आप किसी और पे मत जाओ कि अच्छा श्रीकांत निकल गया तो मैं भी निकल जाऊं। अब श्रीकांत का कैलकुलेशन अलग है, उसको आज पैसे की जरूरत है भाई, उसका बच्चे का बर्थडे, वो चाहता है आज प्रॉफिट लेके जाए तो निकल जाएगा वो। तुम्हारा कौन सा बर्थडे हो रहा है, तुम बैठो ना आराम से। सो इट्स ऑल अप टू यू। आप दूसरे को देख के मत करो ना, आपका अपना एपेटाइट होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक टाइम पे जब आपको, हाँ अब आप बोलो कि अच्छा 2 रुपीज पे आ गया है, क्या करे? तो आपको टाइम देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज नोट डाउन। वंस मार्केट रिचेस 315, 320, उसके बाद क्या होता है, ज्यादा कोई अगर बड़ा मूव आएगा भी ना कुछ लेट से, तो लास्ट में क्या होता है, जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो पूरे दिन का एवरेज प्राइस होता है। तो अगर लेट से लास्ट में पूरे दिन मार्केट रुका रहा और लास्ट 10 मिनट्स में एक मूव ज्यादा आ रहा है,
तो होता है क्या है, उसकी जो क्लोजिंग होती है ना, उसमें वो मूव डिस्काउंट हो जाता है, बिकॉज सारे दिन तो वो मूव नहीं किया, तो एवरेज प्राइस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर मार्केट का, मार्केट उससे नीचे क्लोज होने वाला है, तो उसकी वजह से वो सारे स्ट्राइक जो आपको दिख रहे होते हैं वो वहीं पे, तो 315 के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। Once if you are in the trade till 315, remain till 330, because last 15 मिनट में सब जीरो मिल जाएगा आपको, ये एक रूल रख लेना। अगर आपको निकलना ही है ना तो 245 पे निकलो, बिकॉज जो एक मूव आता है मार्केट में वो जनरली 230 240 के बाद एक बड़ा मूव आता है, सिग्निफिकेंट मूव जिसको बोलते हैं, जो आपका एसएल वेसएल 5 रुपीज के प्रीमियम को 50 पे लेके जाता है, दिस काइंड ऑफ मूव, राइट। तो वहां पे आपको या तो आपको 230 पे एग्जिट मारना पड़ेगा, 230 240 के अराउंड, राइट, और अगर आप वेट कर लिए देन फिर आपको निकलने की जरूरत नहीं है। बट वो जो मूव का पीरियड होता है ना 310 315 इज द लास्ट, उसके बाद जो प्राइस दिख रहा है आपके स्क्रीन पे मोर और लेस वो उसी प्राइस पे जाता है, किसी में 1 रुपीज है तो वो 0 पे जाएगा, किसी में 2 रुपीज है तो वो भी 0 पे जाएगा, ऐसे ही होता है। तो डोंट एग्जिट एट 3, मतलब कई बार मैं क्या देखता हूँ आप एग्जिट कर जाते हो 310 पे, 310 तक फ्रीज हो जाता है एक्चुअली मोस्टली। सो वंस आपको ये देखना है कि मेरा ऑप्शन का जो लास्ट प्राइस है ना वो 0.05 होता है। अब आप देखो आपका प्राइस कहाँ है, अभी मान लो मैंने 300 क्वांटिटी सेल किया हुआ है, मेरा प्राइस है 0.8, क्यों एग्जिट करूं, 8.8 इंटू 3 240 रुपीज और बनेगा, मेरा पूरा लेके जाऊंगा। ये होता है बिजनेसमैन माइंड। बट मैं कह रहा हूं आप लोग पता नहीं क्या कैलकुलेशन नहीं आता है कि क्या नहीं आता, भाग जाते हो। 0.8 कॉल में भी है, 0.8 पुट में भी है, विच मीन्स इफेक्टिवली 1.6 रुपीज यू कैन मेक, 500 रुपीज और बन सकता है भाई। मत निकलो ऐसे, हर एक्सपायरी में निकलोगे तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 साल का जोड़ लो, कितना का नुकसान कर रहे हो आप, है कि नहीं। तो ये है मैथमेटिक्स, ये है कॉमन सेंस, प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है। तो 35310 इज वेयर हो जाता है प्राइस डिसाइडेड। जो मेजर चेंजेस होते हैं वो 240 से लेके 35 तक के बीच में होता है, जो भी बोलते हैं उठापटक होता है मैक्सिमम। हर एक्सपायरी का चार्ट उठा के देख लो, आपको उसी टाइम पे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर दिखेंगे, तो वो बाइंग के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। लॉटरी खेलनी है लॉटरी, तो दैट इज द टाइम। कुछ लोगों ने आज खिला रहा लॉटरी, आई थिंक ले लिया बाय। सो बिकॉज वहां पे आप 3 रुपीज 4 रुपीज 5 रुपीज का ऑप्शन पकड़ोगे, 20 रुपीज पहुंच जाएगा, 30 रुपीज पहुंच जाएगा, ठीक है। बट दैट टाइम वी शुड बी कॉशियस विद आवर सेलिंग, क्लियर, इज दैट क्लियर ना। So because see, you are trading every day, so you should know all that, and don't expect him. I will send something. I will do anything, because I will not say going forward. Only reason why I write, because I see some new people are trading, so I want them to come out in profit. That's it. But I see कि old new छोड़ो, new वालों में ज़्यादा guts है. They want to hold, but these old people they want to exit at the first thing, right? So ऐसा नहीं करने का, ठीक है। आप आराम से रहो यार, पैसा बनाओगे नहीं, अभी भागना ही है तो फिर ट्रेड क्यों लेते हो। So first thing is you should know what is your loss, you should know what is your maximum profit, and this Excel file will help you to do that. All you need to understand is mathematics. Agree or not? और क्या चाहिए यार, कौन से इसमें बच्चा भी समझ जाएगा 2-4 बार में। तो आप तो बड़े हो, आप तो कॉर्पोरेट में इतना अच्छा जॉब वॉब करते हो, आपको तो कैलकुलेशन वगैरह आना चाहिए सब। ऑफिस के तो कितने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होते हैं, राइट। तो प्लीज यूज दिस एक्सेल, right, and just enter data, you will get stop loss and you can calculate. Can you all do this from tomorrow? कर सकते हो ना। और दूसरा मैंने आपको बताया एग्जिट कब करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग ठीक कर रहे हैं, वी आर डूइंग वेरी गुड, वी आर ट्रेडिंग एज पर दिस एंड हैपनिंग ऑल। यू नो कि देखो लो विक्स का फायदा ये कि लॉस बहुत कम होगा वर्स्ट केस में, और हमने ऑलरेडी ट्रेलिंग मेथड लगा दिया तो लॉस को कम कर दिया। नाउ हाउ डू यू फाइंड दिस न्यू स्ट्रेटेजी, मतलब कंपेयर टू व्हाट वी वर ट्रेडिंग अर्लियर, lot of less fear in this, correct? आप मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं देखते होंगे, एंड इट इज वेरी मच प्रोटेक्टेड, सो आपका लॉस नहीं होगा, एंड प्रॉफिट्स आर डिसेंट, राइट। कम कैपिटल पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, isn't it? Can you tell why we are getting more profits? बताओ, what is the reason for more profits? हमारा लॉट साइज तो ज्यादा होता है ना, बिकॉज ऑफ ट्रेजर्स हम 2 ले रहे हैं ना, उसमें बहुत फर्क पड़ता है।
तो स्ट्रेडल से फर्क पड़ता है, बट व्हाट आई कि कम कैपिटल पे इतना, बिकॉज यू नो फ्रॉम लास्ट मंडे टिल टुडे वी हैव मेड 7% एज पर दिस स्ट्रेटजी। 7% पूरा एफडी में एक साल में मिलता है 7%, यहाँ पे 7 डेज में 7% मिल गया। Right. Now you can also understand कि whatever back tested data that you are seeing, ये कोई फेक या ऐसी नहीं है, फ्लूक नहीं है। It actually exists, and if you trade, you will get that number also. How many of you have that belief कि yes, actually वो लग रहा है वो हो जाएगा, correct ना? All you need to do is just follow the process, follow the rules, follow this thing, and believe me that number will happen. वो हर मंथ हिट करता जाएगा, बिकॉज उसमें मैथमेटिक्स है, कुछ है ही नहीं, मतलब नहीं होने का कोई रीजन नहीं है, करेक्ट? गॉट इट ना? तो इज व्हाई यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट द ट्रेड, यू शुड बी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता है। प्लीज रिमेंबर, इफ यू इवन इफ यू आर मेकिंग 500 रुपीज ना, बहुत है, क्योंकि नहीं मिलता है भाई, लोगों का चला जाता है। ओनली थिंग इज यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर बीइंग गिवन समथिंग व्हिच इज कम सो इजी टू यू, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे 10-15 लाख गंवाने पड़े तब मैं ये सब सोच पाता हूँ। आई हैव लॉस्ट 10-15 लाख रुपीज बैक देन ओनली आई नो ऑल दिस। अगर मैंने नहीं गवाया होता तो मैं कभी सोच ही नहीं पाता, मैं कभी समझ ही नहीं पाता हाउ मार्केट बिहेव्स। सो नाउ दैट यू हैव इट ना, व्हाट आई वांट यू हैव सम ग्रैटिट्यूड फॉर दिस। वाओ, आई एम गेटिंग, बिकॉज यू आर लकी, दैट्स व्हाई यू गॉट इट, एंड दैट इज व्हाई ऑल आई आस्क यू विथ फोल्डेड हैंड, please put little bit of effort. You say I failed to generate token. What kind of excuse is that? आपको एक ही काम करना है, टोकन जनरेट करना, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। मैं भूल गया, टाइम निकल गया, कम ऑन, व्हाट इज दिस? ये नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने क्या कहा, हर दिन आपका ट्रेड होना चाहिए। यू शुड नॉट स्किप इट, बिकॉज यू डोंट नो विच डे यू आर गोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, राइट ना? हो सकता है समडे इट इज बिग प्रॉफिट डे एंड यू फेल टू टेक इट बिकॉज यू कुड नॉट जनरेट टोकन। आप ही बताओ, ये अच्छा रीजन है क्या? नहीं है। सेकेंड रीजन, मेरा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय नहीं किया मैंने, टोकन जनरेट किया पर मेरा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय नहीं हुआ, ये तो और भी अजीब सी बात हुई, राइट? तो आपको ना ये चीजें कर लेना है। एक 8:30 से लेके 9:30 का आपके पास विंडो होता है, जितना जल्दी हो सके करके आराम से बैठ जाने का, ठीक है? थर्ड थिंग इज, ये जो आपको ना एंट्री तो अपने आप हो जाएगा, यू हैव टू जस्ट इंश्योर मार्जिन शॉर्टफॉल वगैरह ना हो, वो देख लेना। ट्रेड जैसे होता है मॉनिटर कर लेना, एंड देन एग्जिट जो करना है एकदम इसी से करना है आपको, ट्रेडट्रॉन से ही करना है। यू हैव टू गो ट्रेडट्रॉन, प्रेस द बटन एग्जिट एंड एवरीथिंग विल गेट एग्जिटेड। वन मोर थिंग, डू नॉट एवर टेक एनी मैनुअल ट्रेड्स फ्रॉम शून्य। When I ask you what today I asked when the call is already gone, right? To the buy call, it will eventually go to zero, right? Even after so much of movement in the market today, still you go and see the buy went to zero, right or wrong? So if let's say that time the buy is trading at 1 rupees and you have 500 quantity of that buy, so what I'm asking you to get out of that buy, because that 1 will become zero. So why do you want to make it zero? Clear? On expiry day, non-expiry day like yesterday or Friday, what will you do? Once the stop loss is hit, na, wait for some time. Wait, I am telling you, wait for some time, because if the momentum continues in that direction, so you will see that buy will give you some profit. From, let's say, from 6 rupees, it can go to 8 rupees, 9 rupees, sometimes 12 rupees. So आपको थोड़ा सा smartly वहां पे play around करना है. All you have to do is, after the SL is gone, exit from the buy at right time. You decide your right time. I will not tell you when is the right time. But my only intention to ask you to exit is so that we can avoid the decay part in that buy. और वहां पे जो हम लोग मार्जिन ले रहे हैं ना, इसकी वजह से, तो लॉन्ग रन में we can make profit as per system, but also not losing money in the buy. Right? समझ में आया? Did you get this point? And when before you the system will exit you TradeTron, all you have to do is again इसको वापस बाय कर लो, मतलब बाय किया है, you have sold it, right? मॉर्निंग में ऑप्शन बाय हुआ तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ा या जो भी था, आपने उसको सेल कर दिया। कहां से सेल किया? अपने ब्रोकर अकाउंट से किया। TradeTron में नथिंग यू कैन डू, पार्शियल ट्रेड्स कैन नॉट हैपन इन TradeTron, ओके? तो यू एग्जिटेड, अभी आपने अपने ब्रोकर से उसको हटा दिया,
अब आपको पता है कि आपका एग्जिट 328 पे, तो 325 पे जाके सेम ऑप्शन को वापस बाय कर लो आप, सेम क्वांटिटी, क्योंकि ट्रेड ट्रॉन अभी आपका अटेम्प्ट करेगा उसको स्क्वायर ऑफ करने का, तो उसको वो ट्रेड मिलेगा, वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। बिकॉज इफ यू डू नॉट डू दैट, व्हाट विल हैपन, ट्रेड ट्रॉन वहां से जब फायर करेगा तो वो उसको ट्रेड मिलेगा नहीं वो वाला, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एग्जिटेड, राइट। तो वो रिवर्स ट्रेड ले लेगा, मतलब वो सेल हो जाएगा आपके अकाउंट में। गॉट इट? समझ में आया? Yes. तो ये लॉजिक क्लियर है। तो आपको बस एक बटन ही दबाना है, ट्रेड, वहां पे जाके क्लिक किया एग्जिट, फिर वहां पे क्लिक किया ऐड, कितना क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, बाय, हो गया, खत्म। तो आपने यस Amit, I have small doubt. For example, you told to sell the call option. You explained. So I will go to my broker and I will exit it. you exited, right? Okay. Then in TradeTron, should I make any? No, TradeTron, nothing. TradeTron Okay. don't even have to touch. TradeTron is running, let it be. But TradeTron will not attempt 328 or 328, right, to sell this buy. But Okay. that buy should be there, right, because you have exited. So you go 2-3 minutes before and again do, because what will happen, let's say you sold the buy at 1 rupees. Yes. Now 325, it is trading at 0.1. So you Yes. will buy it at 0.1, correct? Huh. So that it can, so in that process, 0.9 paisa or 1 rupees, 2 rupees, whatever you have saved by Got it. exiting at that point of time, right? Got it? Huh? Got it. Got it. If you don't do, let's say you say, no, I can't do this, then no problem. If you are okay to pay the money, you keep paying. I don't have any problem. I Right? understand. You got it? Huh? Because it is new to me. That is the reason I'm asking No, you. no, Amit. not, I'm not telling you, but lot हाँ. of other people, you know, who are so lazy, no, कौन इतना करेगा, रहने दो, कोई बात नहीं, आप रहने दोगे तो कुछ होगा नहीं, वो 400-500, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ एज अ बिजनेसमैन, एवरी ट्रेड इफ आई सेल 200, 300, 200, 300, तो ओवर द ईयर आई विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, isn't it? At least my brokerage, STT, all those cost will be covered. ठीक है? Got it. Clear ना? So do not ask all this during trade time, because you know already we have discussed. समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये प्रोसेस है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्लियर ना? सो एक्सेल फाइल कैसे अपडेट करेंगे, पीएनएल कैसे निकालेंगे अपना, समझ में आ गया? कौन से ट्रेड में आज मेरा मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करने का वेरी सिंपल प्रोसेस है। पहले तो मैक्सिमम लॉस जान लो आप लोग हर ट्रेड में। फॉर एग्जांपल टुमारो इज थर्सडे, ठीक है, आई एम शोइंग यू हाइपोथेटिकल सिनेरियो। तो लेट से निफ्टी वी आर ट्रेडिंग, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन हमारा ट्रेड हो गया लेट से 45 पे, पुट ऑप्शन हमारा सेल हो गया 50 पे, सेकेंड स्ट्रेडल में कॉल हमारा सेल हो रहा है लेट से 49 पे, एंड पुट ऑप्शन हमारा सेल हो रहा है 41 पे, ठीक है। तो ये मेरे ट्रेड से कल के, ठीक है। नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे आ गया 22,400 ऑन दिस कैपिटल व्हाटएवर वी आर ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट में ये ना ये सबको जीरो मान लेता है कि लेट से अगर जहां पे मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट वहां पे एक्सपायर करेगा तो विदाउट एनी एसएल तो 22,400। तो ये मेरे को समझ में आ गया, अच्छा आज के प्रीमियम से ना दिस इज माय मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये पहला ब्रेक थ्रू आपका मिल गया मॉर्निंग का। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ये समझ में आ गया। अब आपको मैक्सिमम समझ में आ गया, आप मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट कर लो। कैसे? ये आपका एसएल है 67.5, 75, 79.4, 67.4 एज पर द स्ट्रैटेजी, करेक्ट। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है कि अगर सबका एसएल हुआ, लेट से इसका एसएल हिट हो गया 67.5, तो मेरा लॉस कितना होगा ऑन माई क्वांटिटी 3600 लेट से, ठीक है। अभी ये ऑरेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका एसएल हिट हुआ, ठीक है, तो इसका एसएल हिट नहीं होगा बिकॉज ये एग्जिट हुआ 50 रुपीज पे। Clear? This is what this orange color means. Because we are trailing the stop loss, which means if I am entering at 50 rupees, SL is 75, but the moment this SL will hit 67.5, this और अगर इसका प्राइस रिवर्स करेगा तो we will exit at 50 only, will not wait till 75. Got it? तो that is why इस वाले में मैं कोई लॉस नहीं करेंगे। वर्स्ट केस में भी I am not going to lose here, right? Now let's come to this option. ओके, लेट से ये हम 80 पे एसएल हमारा जाता है,
ओके और ये वाला इस वाले में इट इज ग्रीन बॉक्स विच मीन्स देर इज नो ट्रेलिंग मेथड, इट विल ऑल्सो गो टू SL. तो दिस इज योर मैक्सिमम लॉस 8,000 रुपीज. क्लियर? इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए दुनिया में. गॉट इट ना? इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. सो वंस यू नो कि 24,000 वाज माय मैक्सिमम प्रॉफिट, 8,000 इज माय लॉस. सो रिस्क रिवार्ड आपको पता चल गया 1:3. क्लियर? नाउ व्हाट यू विल डू? So let's say your profit has come to 17,000, 16,000 kind of. So you know कि अच्छा my maximum profit can be this much. I already reached 16,000. Let me exit now. Or other way, let's say you are already down by 6,000 rupees. So don't think of exiting because you know कि anyway it is going to be 8,000 only. So no point in exiting. I will hold. जहाँ पे 6,000 का लॉस ले लिया 8,000 भी लेंगे. Right now, but you got it ना? So again, on a capital of 4 lakh, maximum loss, as I said, 2% only. 2% से ज़्यादा नहीं कमाओगे. But profit can be up to 5%. 4 lakh पे 20,000, which is 5%, right now? So that is how this strategy is designed. Whenever you are winning, you know, best case will always give you double, triple, 5 times. You know, risk reward is very high here. तो समझ में आया ना ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन निफ्टी डेज यू कैन लूज मोर बिकॉज निफ्टी में कैपिटल भी ज्यादा लगता है. फिर थोड़ा सा निफ्टी में कल चेक कर लेना बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी. ये थोड़ा निफ्टी में प्रीमियम थोड़े ज्यादा होते हैं ना फिर निफ्टी के कंपैरिजन में. सो दैट इज व्हाई इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रीमियम्स. एंड अदर रीजन व्हाई वी आर लूजिंग मोर इन निफ्टी इज बिकॉज इन केस ऑफ निफ्टी आवर स्टॉप लॉस इज हाई. In Fin Nifty, our stop loss is only 47%, but Nifty stop loss is 62%. So more stop loss means you can lose more. Got it? So this is how it is. Why we have kept it like that? Because that's what the backtesting says. We have to keep this much. If we bring down the stop loss, what will happen? Maybe then we'll lose out on a lot of other days where we can make profit. Okay, clear? So you now know how to use Excel. You know how to see the trades in Tradetron. Now I will tell you few simple things in Tradetron you have to keep in mind. So this Excel is clear. And Yes. after that, I hope all of you are maintaining journal. What is journal? This journal. This one. Here you have to just maintain like 26 June. Let's say 6,500 profit. Taxes, go and check your contract data or reports.shunya.com. You go there, reports.shunya.com. In this, you will see in derivatives bill summary. Derivatives bill summary. You will select. You will get everyday data. What is the tax and all that, right? So from there you can copy this. So let's say taxes are 90 rupees. So what is your net position? 6,410. And you just put the capital, your capital here. Automatically this will keep getting added. So P&L as per system. As per system means what Tradetron at the end of the day is giving you. Write it down, okay? So that you can match what you made and what the system gave. Whether it is more or less, right now. So most of the days this should be equal. Like if you are doing 100% as per system. Withdrawal means as and when you are withdrawing money, you just enter the data, and then I think then you will be able to. Then you just keep maintaining. So this will basically maintain a log for you. Okay. So PNL as per system, if exited early, then how we can know that? PNL as per system is as per system. जो आपने को ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, जिसे मैंने डाला ना कि इस कैपिटल पे इतना था, तो आप वो एंटर मार दो. आपने कब निकला वो आपका पोजीशन है. तो दैट वे यू कैन सी दैट डेविएशन कि अगर आप लेट से हर दिन अपने मन से निकल रहे हो और एकदम सिस्टम का अपना चल रहा है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल सी द डिफरेंस ना कि आप अगर अपने मन का चलाए तो सिस्टम से बेटर रहे या खराब रहे. अगर आप लगातार देख रहे हो मैं खराब ही रह रहा हूँ, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ. इससे अच्छा मैं सिस्टम का ही कर लेता हूँ ना. गॉट द पॉइंट ना. इसलिए ये डेटा रखना जरूरी है कि सिस्टम क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं. अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो वो डेटा विल बी सेम. करेक्ट? गॉट इट ना. So again, I'm telling this Excel is very, very important, right? For your, until and unless you maintain a journal, you will never become a good trader, right?
तो आपके काम के इधर ये डेटा ही है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा भी है जस्ट एंटर द एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस विल कैलकुलेटेड ऑन तो फिल जर्नलिंग में ये, और बाकी ये तो आपके रेफरेंस के लिए ये सब डेटा दिए गए हैं, ठीक है। सो 1 2 3 टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यू नो कि हाउ टू सी द ट्रेड्स, ऑर्डर बुक में आप देख लेते हो। One very important thing which you have and you should look in, whenever you get an error, okay, you go to this block and click on notification log. In notification log, each and every detail is captured. So if let's say some error you are seeing now, it will give you the reason of that error so that you will know. For example, margin shortfall. तो यहाँ पे ना लिखा हुआ आएगा margin shortfall. तो you will मेरा तो understand. आज हुआ भैया हाँ मार्जिन शॉर्टफॉल, मेरा तो आज हुआ मार्जिन शॉर्टफॉल। हाँ, हुआ ना कि तुम पैसे ही कम रख रहे हो, भरो पैसा थोड़ा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा आ जाएगा एक एक चीज का, राइट। सो यू कैन सी ईच एंड एवरी डिटेल्स आर कैप्चर्ड। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे देख रहे हो 47, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड। तो हम आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हिट हुआ, गलत हुआ, मतलब बेसिकली जो आप वो करते हो ना, डिबगिंग करते हो कि क्या हुआ, तो वो आपको ये लॉग से पता चलता है। देखो यहाँ पे ट्रेड वीक डे टू नंबर, तो ये बता रहा है एंट्री कंडीशन कौन सा सेटिस्फाइड हुआ जिसकी वजह से ये ट्रेड हो रहा है, राइट। टाइम 10 o'clock, so everything is there. So please look into Amit ji, notification. where is that notification? Notification From log which option? यहाँ पे आएगा notification log, Oh, okay. 3 dot. 3 डॉट में, ये 3 डॉट में सब कुछ आ जाता है। Okay, there is an option of multiplier. Now what is a multiplier? For example, you are trading with 3.2 lakh. You traded for 6 months. Now you want to double. तो आपको ना जाके लॉट वॉट चेंज नहीं करना, आपको बस मल्टीप्लायर यूज करना है 2x. The moment you deploy the strategy with 2x, automatically it will initiate double lot size. मतलब अगर कल वो 8 लॉट करता था तो अभी 16 करेगा. So that is the role of multiplier. So if you have your strategy, you can keep multiplying as and when you grow your capital. आप 6 month में 1 year में अपने इसको मल्टीप्लायर यूज करके कर सकते हो. You don't have to change anything in the code. Clear? Is it clear? Yes. Yes, sir. Okay. Now ये what इस पे you have to do काउंटर का every day? मतलब क्या होता हाँ? है? काउंटर का मतलब क्या होता है इसमें? कौन सा काउंटर? ये हाँ, काउंटर ये टोटल वैल्यू बताता है इसका. So you अच्छा। see counter 6676. हाँ, इस पे always it shows as 1, no? तो वो what does 1 mean here? नहीं, कई बार स्ट्रेटेजी हम लोग 2 3 भी एक साथ डाल देते हैं, तो उसमें वो अलग अलग का अलग अलग दिखाता है, ठीक है. अच्छा, या ये वो है क्या, कंटिन्यूअसली अगर ये स्ट्रेटेजी चलता रहेगा तो वो ऐड करता रहता है, प्रॉफिट पीएनएल एडजस्ट करता रहता है उसमें. करेक्ट एवरी टाइम उसको ऐड करते हैं. अगर मान लो आप स्ट्रेटेजी को जैसे आज हमने किया तो काउंटर 1 में 6676, अगर कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो शायद एक और काउंटर ऐड हो जाएगा 2. हाँ, और उसमें फिर वो प्रॉफिट overall पीएनएल ऐड हो जाएगा, मतलब उसका ऑल में वो दोनों ऑल का में ऐड दिखा. हो जाएगा, 2 में अलग से बताएगा कि कल क्या हुआ, थर्ड डे में क्या हुआ, फोर्थ डे में क्या हुआ. तो आई थिंक काउंटर विल कीप गेटिंग एडेड. ओके. So So- normally what we used to do every day इसको archive नॉर्मली करना आप है. लोगों को क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ. आप एग्जिट करके, जैसे यहाँ पे ये एग्जिट हो गया, ये डेटा कैप्चर हो गया. नॉर्मली आपको अगर हम छोड़ दोगे ना तो कल यहीं से गेम शुरू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो हमने सेटिंग में डाल रखा. तो बाय डिफॉल्ट अगर आप छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम स्ट्रेटेजी को रीडिप्लॉय नहीं करते ना तो कुछ केसेस में हमने देखा है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है. अब ये उसके वजह से होता है, ये एग्जैक्टली क्या रीजन है, हमने ट्रेडट्रॉन को कंप्लेन भी किया था बट उन्होंने बोला नहीं ऐसा वैसा. तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप ना उसको रीडिप्लॉय कर लिया करो. कई बार Every day. पैसिंग का प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से शायद हो जाता होगा. तो हमने कहा चलो यार, हम वाई टू टेक दैट रिस्क. सो बेटर इज एवरी डे वी विल गो देयर, वी विल प्रेस ऑन आर्काइव एंड विल आर्काइव दिस डेटा. Okay. तो ये ब्लैंक हो जाएगा, नो स्ट्रेटेजीज डिप्लॉयड येट. जैसे हम आर्काइव करते हैं ना, देन इट शुड गो टू रिपोर्ट्स, मतलब नॉट इमीडिएटली. तो इस रिपोर्ट्स में आपको आपके नेक्स्ट डे में दिख जाता है वो. नेक्स्ट डे में आपको दिख जाएगा जो आपने आर्काइव किया है. सो इट विल कीप गेटिंग अपेंडेड है. तो यहाँ पे आपको ना आपका सारा डेटा आ जाता है इस तरह से. एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस 20 जून को क्या हुआ था तो यू विल सी. और अगर आप यहाँ पे एक एक्सेल फाइल भी आता है, आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट. इधर भी आप
सो यू कैन सी ऑल दैट, दोस थिंग्स आर देयर, ठीक है, वो देख लेना। तो रिपोर्ट्स में आपको आपके सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। सो मैं एक दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ रिपोर्ट्स के लिए, लेट्स सी। इसका लेट्स से डेली चल रहा है, पल्लवी कुलकर्णी है, इनका चल रहा हो। सो पल्लवी कुलकर्णी का हमने नया में डाला था। अभी ये क्या कर रही है, ये पेपर ट्रेडिंग में लगता है रोज रोज वो कर रही है, ठीक है। 18 जून मेरे वाले पे देख सकते हैं। तुम्हारे में डेली का अपेंड होता है क्या? हम्म। अच्छा, इसमें भी देखते हैं इसमें क्या है। एक्चुअली वो फिल्टर लगा के हटा देंगे तो डेली अपडेट होता है। फिल्टर में अभी लगा हुआ होगा ना, कुछ कुछ फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर में क्या लगा हुआ है? मोर में क्लिक करिए, दिस मंथ का पूरा सारा स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है, आपका ठीक है, यही है। नहीं, ये मेरा नहीं, किसी और का है ये, लेकिन पेपर ट्रेड में है ना, तो ठीक है। हाँ, ये पेपर ट्रेड में क्या ये हर दिन कर रहा है ट्रेड? 26 जून का था, ओके, कल तक का है, राइट। तो यू कैन सी यहाँ पे देखो, ये 19 जून को हमने डिप्लॉय किया। सो 19 जून 970 रुपीज आया, राइट। देन 28 जून को 2566 आया, तो ये बन गया 3536। इसके बाद 1475 आया, तो ये बन गया 5000। इसके बाद 498 आया, तो ये बन गया 5509। उसके बाद आज का जो है वो ऐड हो जाएगा 2500, करेक्ट। तो अराउंड 8000 हैज बीन मेड ऑन दिस स्ट्रेटेजी जो इन्होंने यूज किया है। तो 1.6 लाख पे 8000, करेक्ट, अच्छा है ना। 8500 करीब हो गया, तो वही 7% के आसपास हो गया इसका, इनका, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में यू विल गेट ऑल दिस डेटा। और सेम थिंग यू कैन डाउनलोड इन एन एक्सेल ऑल्सो इफ यू डू एक्सपोर्ट ऑल पोजिशंस। तो ऑल डेज ट्रेड यू विल कैन डाउनलोड एंड देन यू कैन गो थ्रू ऑल द डेटा। तो ये देखो, यहाँ पे आपको हर दिन का डेटा आ जाएगा। What price you entered, what price you sold, right? Clear, all of you? Yes, no? जी भैया। ठीक है। यस भैया। So it is very important to keep all this data, ठीक है। Okay, so now when you have this strategy, यहाँ से बाहर करते हैं। Okay, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है ना काउंटर 1 970, काउंटर 2 2566। so इनका ओवरऑल प्रॉफिट 8000 on a capital of 1.6। तो कितना परसेंट हो गया? 5%, राइट। इसको हम एग्जिट नहीं किया ना, आई मीन वी डोंट आर्काइव इट, इट स्टिल कीप्स नहीं, कंटिन्यूइंग। ये डेली रन हो रहा है, ये पेपर ट्रेड में है। इसको हम डेली लगातार डिप्लॉय, अपने आप को ऑटो डिप्लॉय हो रहा है एवरी डे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू सी दिस 5 days, these are 5 trading days, 1 2 3 4 5, मंडे ट्यूसडे एंड मंडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे, फिर फ्राइडे होगा। नहीं, फ्राइडे इसमें कोड नहीं होगा फ्राइडे हाँ, को। मंडे ट्यूसडे थर्सडे और मंडे ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे, तो 5, इसमें 5 ट्रेडिंग डे है, फ्राइडे नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके वजह से इनका प्रॉफिट सीधा सीधी 5% है, राइट। अगर हम फ्राइडे को भी ऐड कर दें और थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें तो हमारा 7% आ रहा है, करेक्ट। तो ये कैप्चर हो गया ना, राइट ना। तो दिस इज लाइव डेटा, और जो हम देखते हैं वो बैक टेस्टेड डेटा है, करेक्ट, क्लियर। तो एवरीडे परसेंटेज इज गेटिंग एडेड। सो समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ओके, नाउ so okay, now let me go back and show you how to change the code. So I will go to my strategies. अभी ध्यान से देखो, this is your strategy name, PWT intraday, what is the name, intraday strategy category C, ठीक है, edit। अभी हमें क्या करना है, बेसिक चेंजेस जो होते हैं ना, आपके दिन बदल गया कभी, देखो इसमें ये होता है स्ट्रेटेजी नेम, कुछ भी डाल सकते हैं, टैग है। ये डिस्क्रिप्शन में ना वी कैन डू एनीथिंग, सो डोंट गो विद डिस्क्रिप्शन कि अरे मेरे डिस्क्रिप्शन में करेक्ट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, तो यू कैन चेंज। ये तो हमने बस ऐसे कुछ जो डाला था डाल दिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके उस पर, वो तो डिस्क्रिप्शन है, क्लियर। जो फर्क पड़ता वो है सेट है। तो आपका जो सेट नंबर 1 to 4 है वो निफ्टी के लिए थर्सडे का। हाउ डू वी नो इट इज थर्सडे? बिकॉज वीकडे जो है ना वो 4 है। अभी कल हमें क्या करना है, कल वेडनेसडे है और थर्सडे को मार्केट बंद है, राइट। तो जो निफ्टी का स्ट्रैटेजी होगा वो कल ट्रेड करेंगे, तो हम 4 को क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, बस ये करके सबमिट कर दो। दैट्स ऑल यू हैव टू डू एंड देन इट विल बिकम 3।
उसके बाद आपको वापस इसको रिवर्ट कर देना, 4 पे कर देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ये स्टॉप लॉस कंडीशन है। रिपेयर में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। देन अगेन गो टू सेट नंबर 2, यहाँ पे भी आप 4 को 3 कर दो, ओके, एंड डू सबमिट, ठीक है। इसके बाद आपको रिपेयर में कुछ नहीं करना है, एग्जिट में कुछ नहीं करना है। देन गो टू सेट नंबर 3, यहाँ पे भी 4 को 3 कर दो, ओके, सबमिट। तो यहाँ पे देखना 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेट नंबर 4 में जाओ, फिर यहाँ पे भी 4 को 3 कर दो, सबमिट, ठीक है। तो ये सेट नंबर 1 to 4 जो है हमारा निफ्टी का है बस। इसके बाद अगर आप 5 देखोगे तो वहां पे 1 है, 1 मतलब मंडे, ये मंडे को चलता है। बस आपको इतना करना है, लास्ट में आपका एक अपडेट बटन होता है, जस्ट डू एन अपडेट, अपडेट किया और अब यहाँ पे डिप्लॉय कर दो। व्हेन यू डू डिप्लॉय, यू हैव टू डिप्लॉय इट इन लाइव ऑटो एंड सेलेक्ट योर ब्रोकर फिनवेशिया एंड डिप्लॉय, दैट्स इट। और वापस इसको फिर रिवर्ट कर देना, 3 को 4 कर देना अगले वीक के लिए। क्लियर? यस इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. बस इतनी काम है, यस और भैया। कुछ ही नहीं। और कभी जैसे आपको मान लो कुछ लॉट वगैरह चेंज करना हो, तो ये देखो मैं बता देता हूँ। तो डे कभी भी चेंज करना होगा ना फ्यूचर में, लेट से कई बार होता है हॉलीडे की वजह से इम्पैक्ट आता रहता है, तो उस दिन आपको बस ये चेंजेस करने हैं। आपको नोट कर लो, आपका जो निफ्टी है ना, निफ्टी एक्सपायरी, वो कोडिंग है सेट नंबर 1 to 4 में, ठीक है। 1 to 4 जो सेट्स हैं वो निफ्टी एक्सपायरी के लिए थर्सडे के लिए। सेट नंबर 5 से लेके 8 जो है वो आपका मंडे का कोडिंग है फिर निफ्टी का। 5, 6, 7, 8 ये मंडे का कोडिंग है फिर निफ्टी का। जो सेट नंबर 9 है वो ट्यूसडे एक्सपायरी का है, आज वाला जो हुआ। तो सेट नंबर 9, 10, 11 एंड 12 आर फॉर ट्यूसडे फिर निफ्टी। सेट नंबर जो 13 है से लेके 16 है वो फ्राइडे के लिए है, ठीक है। बस ये लिख लो आप, तो उसके हिसाब से कभी कोई चेंज करना हो तो आप वहां पे कर लेना। डे वाला चेंज तो वेरी सिंपल, राइट। इसके बाद कई बार ना लॉट चेंजेस, मान लो लॉट के लिए आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसे मैंने बताया, यू हैव टू यूज द मल्टीप्लायर फंक्शन। मल्टीप्लायर में क्या होगा, आप कभी भी अपने कैपिटल को डबल करोगे तो यू जस्ट यूज मल्टीप्लायर, यू डोंट हैव टू गो एंड चेंज एनीथिंग। एंड आई विल नॉट टीच यू हाउ टू चेंज लॉट, बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी वो बैलेंस्ड है 2:1 में। आप अगर उल्टा पुल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ओके, गॉट इट? यस या दो क्वेश्चन है। पहला जो लास्ट वीक में आपने लॉट्स चेंज किए थे ना 6.4 के हिसाब से कुछ रिड्यूस किया था, तो वो वापस से हमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे ना अभी? कैपिटल के लिए किया था, हाँ, कैपिटल के हिसाब से रिड्यूस जिन लोगों का अगर किया था तो उसके मैं बता देता हूँ, चलो वो दिखा देता हूँ। तो अगर किसी में किया था तो अगेन यू गो टू निफ्टी एक्सपायरी, सेट नंबर 1, हमारे एक्सेल को खोलो। एक्सेल में क्या दिया हुआ है, कितने लॉट होने चाहिए, 160 क्वांटिटी। तो निफ्टी में सॉरी 200 कितना क्वांटिटी है निफ्टी, 50, राइट? 50। हाँ, इसका 50 का लॉट तो हमारा एक्सेल फाइल में देखो स्ट्रेटेजी में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल के हिसाब कैपिटल एंड गो चेक द कैपिटल। तो यहाँ पे देखो 200 है, 200, 100, राइट? तो 200 का मतलब हुआ कि ये 4 होना चाहिए। अच्छा 200 है ना, तो एक और चीज, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। ये मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कितना डाला है, निफ्टी में 160 डाला है, और यहाँ पे कितना है हमारा, दिस इज 200, 100, 160, 80। तो टोटल क्वांटिटी इज 300 विच इज मोर देन, ओके। तो अभी मार्जिन कितना बता रहा है 200, 100 पे? अराउंड 3.3 में 3.3 3.28 कुछ आया था लास्ट। 3.3 आया था रफली अराउंड। तो इन दैट केस थोड़ा जैसे 3.2 में नहीं होगा, राइट ना, निफ्टी के लिए, अगर जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इफ इट इज कमिंग 3.
पहले तो मेरा 3.2 था, लेकिन उसके हिसाब से हमने चेक किया था और 20 ऐड करके 3.4 किया था। अच्छा ये बताओ, OTM 6 किया था मार्जिन में, मतलब 300 का। श्रीकांत तुमने चेक किया, चेक कर सकते हो? हाँ वही मैं मैसेज किया था ना, वो चेक कर रहा हूँ। हाँ एक बार चेक करके देखो तो क्या आ रहा है मार्जिन अभी। कल थोड़ा प्लस माइनस होगा, बट वी हैव टू चेक द मार्जिन। तो यहाँ पे हमने 200 100 डाला, सो मे बी 3.2 से थोड़ा ज्यादा, तो आपको 3.5 तक रखना चाहिए। 4.8 वाले को 5 रख लेना चाहिए। 6.4 लास्ट वीक इट वाज ओके। 6.4 में वही मैं अमित कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम 6.4 के हिसाब से ना कुछ लॉट्स कम किए थे, क्वांटिटी नहीं, कम वो 6.4 के हिसाब से किया था या 6 के हिसाब से? नहीं नहीं, Six 6 के के हिसाब से हमने कम किया हिसाब था। से मैंने कम किया था। उसके बाद लास्ट में आपने बोला था 6.4 फाइनल Okay. है, तो फंड ऐड करो, नहीं तो लॉट कम कर लो। हाँ ये मैंने कहा था। तो हाँ। आपको ना संदीप ये चेक करना कि आपका 8 और 4 होना चाहिए, ठीक है? तो 4 और 2 होना चाहिए। लॉट आपको कम नहीं करना है, आपको पैसे ऐड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ यू सी, गो टू सेट नंबर 1, इफ योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 6.4 वाला, तो ये जो नंबर है ये 8 और 8 होना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इस पे एडिट करो, और यहाँ पे बस खाली वहां पे जो भी है 8 जो आपका एक्सेल फाइल है वो करके अपडेट दबा दो, बस इतना ही करना है। ये वाला में करना है। इसके बाद आपको इसमें भी सेम चीज चेंज करना होगा। 4 यहाँ पे भी देखो 4, तो ये जहां नंबर्स है ना, ये हो गया पहला स्ट्रेडल का। यहाँ पे आप सेल कर रहे हो और ये स्टॉप लॉस कंडीशन है, तो दोनों में हमको सेम क्वांटिटी होना चाहिए। देन यू गो टू सेट नंबर 2, यहाँ पे आपका होना चाहिए 2, तो यहाँ पे देखो 2 2 है, राइट? और यहाँ पे क्या है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो इस हिसाब से इस स्ट्रैटेजी का इस कोड में फिर आप जाओ 3 वाले में, ये बाई है तो बाई भी इक्वली होना चाहिए। 4 4 पहले वाले स्ट्रैडल के लिए 4 4 है, और ये हमारा OTM है 300। जैसे फिन निफ्टी में हमारा OTM 350 होता है, निफ्टी में 300 होता है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे भी आप देखो ये क्वांटिटी 2 2 है और ये 300 300 है। तो विच मीन सेट नंबर 1 to 4 इज ओके फॉर दिस कैपिटल। अगर मान लो वो कैपिटल जो भी है, कल एक बार मार्जिन चेक कर लेंगे, अगर 19-20 हुआ तो थोड़ा सा पैसा डाल दिया उसमें 20-30,000। अगर हमने एक बार डिप्लॉय करने के बाद फिर से अपडेट किया तो फिर से डिप्लॉय कर लेंगे। अपडेट हो जाएगा, राइट? इट विल गेट अपडेटेड, नथिंग टू वरी। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये जो कैलकुलेशन वाला सीट है ना, इसके अंदर में यहाँ पे जो निफ्टी वाला है, इसका क्वांटिटी आप अपडेट कर देना। मेरे ख्याल से मैंने 200 फिन निफ्टी का ही डाल रखा है, तो वी हैव टू अपडेट इट। तो इट शुड बी 200 इन दिस केस। और आपका जो भी कैपिटल है वो कर लो, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 100। ठीक है, ओके। और अमित अभी हमारा 3 डेज का स्ट्रेटजी पड़ा हुआ है, तो 4th डे यानी फ्राइडे के लिए ऐड करने की बात कर रहे थे ना? वो तो कर दिया है ना ऑलरेडी। अब में है कि नहीं है? मेरे में 3 डेज का है। और श्रीकांत अपडेट नहीं हुआ है क्या अभी? हाँ अभी कुछ कुछ का अभी पेंडिंग है, अभी सारे का आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो फ्राइडे तक का टाइम था, इसीलिए हमने धीरे धीरे कर दिया। अभी है, टाइम है ना, कर देंगे। कुछ लोगों का हो गया, कुछ का पेंडिंग है, कर देंगे। जिन लोग का नहीं अगर हुआ है, आप देख लेना, आप मुझे एक बार बता देना तो मैं करवा दूंगा आपको। थर्सडे का तो छुट्टी है ना? हम कर देंगे। ठीक है ना? तो आप बता देना, मुझे पिक कर देना अगर आपके नहीं हुआ तो। ठीक है, तो क्वांटिटी चेंज करना, लॉट चेंज करना और टाइम ये वाला करना मैंने बता दिया। अगर टाइम भी चेंज करना है ना, तो उसके नीचे वीकडे के नीचे टाइम होता है। कई बार होता है ना आपका टोकन मिस हो गया, कुछ हो गया, तो आप क्या करो, उसमें 2-4 मिनट आगे कर दो टाइम और फिर अपडेट कर दो, तो फिर आपका वापस स्ट्रैटेजी रन कर जाएगा। ठीक है। और भैया कल का एक्सपायरी के लिए 28 दिखाना चाहिए, अभी भी 29 जून ही दिखा रहा है सब। नहीं, वो तो 29 ही दिखाएगा, बिकॉज एक्सपायरी थर्सडे ही है ना, वो तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुका है, राइट? वो मैसेज आज एक्सचेंज नहीं डाला है, राइट? 2 आज ऐसे इंफॉर्मेशन आए जो मैं बता देता हूँ। पहला आया था कि बकरीद की छुट्टी इन्होंने बुध को रखी थी, बट अभी चूंकि सेलिब्रेशन थर्सडे को मनाया जा रहा है, उनका चांद वांद के हिसाब से होता है ना थोड़ा सा, तो अभी थर्सडे को मनाया जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने वेडनेसडे को ही मार्केट चालू करके थर्सडे बंद करेंगे। चूंकि वो थर्सडे बंद करेंगे तो कल विल बी लास्ट डे,
प्रीमियम प्राइसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी वो 4 डे का एक्सपायरी मान के प्राइसिंग चल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा न्यूज आपके लिए ये है कि जो लास्ट मंथ मैसेज आया था एनएससी का कि वो जो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी को मूव करने वाले थे फ्राइडे को, तो उसके लिए आपको पता है सेंसेक्स का भी एक्सपायरी होता है फ्राइडे को, और सेंसेक्स ने मई मंथ में रीलॉन्च किया था अपना बैंकेक्स और सेंसेक्स का एक्सपायरी, वो बीएसई में होता है। हम लोग जो कर रहे हैं सारा एनएससी में कर रहे हैं। तो चूंकि सेंसेक्स ऑलरेडी बीएसई में है और बैंक निफ्टी भी अगर फ्राइडे को हो जाए तो फिर वो क्या होगा, उनका वॉल्यूम्स बहुत इधर उधर होगा। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया एनएससी को कि आप चूंकि हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं और लोगों के पास ऑप्शन भी होना चाहिए अलग अलग ट्रेड करने का, तो अगर आप एक साथ करोगे तो खराब होता है, तो लेट्स नॉट डू दैट। तो आप फ्राइडे के बदले किसी भी दिन रख लो अपना एक्सपायरी। तो एनएससी बीएसई ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जिसमें एनएससी एग्री कर गई और एनएससी ने कहा ठीक है, वी विल नॉट बी शिफ्टिंग आवर एक्सपायरी टू फ्राइडे। तो अभी फ्राइडे को वो नहीं करेंगे, थर्सडे को ही रहेगा। इन फ्यूचर में भी थर्सडे के बदले कोई और दिन कर सकते हैं बैंक निफ्टी, बिकॉज इवेंचुअली दे वांट टू मूव आउट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी एक्सपायरी विल बी गोइंग ऑन एज इट इज गोइंग ऑन, ऐसे ही चलेगा। तो फ्राइडे को नहीं होगा। हाँ, इन फ्यूचर फ्राइडे जो वाला जो डे है ना, अभी शून्य में सेंसेक्स और बैंक एक्सपायरी सपोर्टेड नहीं है। शून्य ने अभी मिड कैप निफ्टी का चालू किया, आपको कल ही एक मैसेज आया होगा नोटिफिकेशन एक्सपायरी चालू है, बट क्या ना मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी वेडनेसडे को होता है, बट राइट नाउ इमीडिएटली वी कैन नॉट डू दैट, वी हैव टू वेट फॉर 6 मंथ एटलीस्ट। 6 मंथ में उसमें मैं मैनुअल ट्रेड लूंगा, ट्रायल एंड एरर करूंगा, थोड़े से पैसे गवाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा कि वहां पे कौन सा स्ट्रैटेजी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा कि स्ट्रैटेजी, अभी ब्लाइंडली कोई स्ट्रैटेजी नहीं है क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत कम होता है अभी समझना। जैसे फिन निफ्टी आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस फिन निफ्टी को आप बहुत एंजॉय करके ट्रेड कर रहे हो, उसके लिए मैंने पिछले साल 1-2 लाख रुपए गवाए हैं ट्रेड कर करके। तब मुझे समझ में आता था अच्छा ऐसे चलता है, ओहो ऐसे करता है, तभी मैंने उसके स्टॉप लॉस को उस तरह से डिजाइन किया। तो ये ना एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। तो आप लोग जो फीस वीस देते हो ये मत सोचना कि सारा मेरे जेब में जाता है, उसका 50% पार्ट तो वो मेरा रिकवरी होता है जो मैंने गवाए हुए हैं, पैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड आई कीप सम बजट इन दोज एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि अदरवाइज अनलेस आई डू एक्सपेरिमेंट हाउ विल आई नो कि कैसे वर्क करेगा, है कि नहीं। तो थोड़ा श्रद्धा के साथ दान किया करो आप लोग। कई लोग बार्गेनिंग करते हैं कि अरे 40 मत करो, 20 ले लो, 25 ले लो। मैं बोलता क्या लूं यार, तुमको क्या पता मैं कितना, रिसर्च के लिए भी तो पैसा रखना पड़ता है ना। सो दैट इज आल्सो देयर। ओके, मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था कि मेरा प्रोग्रामिंग करवा दो बस 10,000 लेके। 10,000 लेके हमने बोला तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है। अभी आप बताओ ना, टेल मी ऑनेस्टली, जितना यहाँ पे सर्विस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, डू यू थिंक 40,000 इज टू मच? टेल मी ऑनेस्टली, यू कैन टेल मी हाँ इट्स टू मच। लाइक एक्चुअली बस क्लासेस का ही 40 ले लेते हैं और कोई इतना क्लासेस का तो 1 लाख जितना नॉलेज मैंने देता हूँ ना, दिस इज वो बोल रहा हूँ ना, दिस इज नॉलेज लाख रुपीज। एग्जैक्टली, क्योंकि अरे यार ये नॉलेज लेने के लिए पैसा गंवाना पड़ता तब मिलता है, अदरवाइज यू कांट गेट, कोई किसी को नहीं पता होता है। वो एक बात हुई। दूसरी बात, इतना सब कुछ सिस्टमैटिक होना, कोडिंग, बैक टेस्टिंग, स्ट्रैटेजी इतना बढ़िया किधर मिलता है यार, लोग को पैसा गंवाना पड़ता है तब जाके करते हैं। हमने स्टार्ट भी किया था ओनली बैंक निफ्टी में, फिर अभी निफ्टी भी कर रहे हैं, फिर अच्छा बताओ, अभी मैं अगर आपसे फिर निफ्टी का फिर से पैसे लेता, चलो भाई 30,000 रुपया दो, नया स्ट्रैटेजी दूंगा, नहीं तो मैं आपको देता नहीं, रोज खाली स्नैपशॉट बेचता आपको, देखो, तो आपके मन में लगता भाई क्या है ये तो लेना ही पड़ेगा। आर वी डूइंग दैट? नहीं, हम तो ठीक है तुमने दे दिया, मेरा मकसद वो नहीं है। मकसद है सब पैसे कमाओ, लेकिन नया में एक पैसा तो देना पड़ेगा ना। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर समवन हु हैज डन सो मच, राइट। वो इतना रिसर्च और आगे भी मान लो कुछ डिजाइनिंग करना है तो वी हैव टू गिव सम बफर, राइट। वरना कैसे करेंगे? रिसर्च के लिए तो पैसा चाहिए ना। अभी हमको नासा रॉकेट भेजना मार्स में, तो कितने ट्रायल एंड एरर होते हैं तब जाके एक सक्सेस मिलता है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी है, राइट, लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। एक्चुअली लोगों को पहला स्टेप डालने में थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, इनिशियली वही बात है, राइट। हम लोगों उनको कन्विंस करना पड़ता है कि किस लिए देखो, कन्विंस नहीं करना पड़ता है, वी डोंट हैव टू कन्विंस एनीवन, राइट ना। वेरी सिंपल थिंग, वी हैव समथिंग
You just talk good about it, you just share your experience, and जिनको करना होता है वो आते हैं. आप लोग को करना था इसलिए आप लोग आके कर रहे हो, सिंपल सी बात है. जिनको नहीं करना होता वो नहीं करेंगे, राइट? They will just, people are very opportunistic, I mean, right? So we are not in the game of हमें किसी को कन्विंस करने के, नहीं you please come, you please join, no. हाँ, but awareness create करना जरूरी होता है, so that people know, बस, right? So that is where you can help. Okay, so I think everything clear, good to go, right? मार्जिन 3.29 ही आ रहा है, आई थिंक हरी हैज सेड अभी. तो 3.5 तक रखो, कोई इशू नहीं आएगा. ओके, ठीक है ना? और ये 6.5 lakhs मार्जिन. नहीं, अगर ये 3.3 है तो देखो ये कई बार ना दिखाता है, लेता कम है. हाँ, वो एग्जीक्यूट होते होते एक्चुअली प्रीमियम भी एडजस्ट हो जाते हैं. एडजस्ट हो जाता है, तो बहुत डायनेमिक होता है एक्चुअली. अभी 6.45 आ रहा है. 6.45 आ रहा है. हाँ, तो इसीलिए मतलब उसके हिसाब से आपको रखना है, राइट? फिर बाद में निकाल लो, कल वापस विड्रॉ कर लो, फिर बाद में ऐड कर. एक दिन ये थर्सडे को थोड़ा सा ज्यादा निफ्टी में लगेगा, बाकी फिर निफ्टी में तो कम लग रहा है. फिर निफ्टी में तो पैसा बफर पड़ा रहता है. ओके, तो प्लीज डू एज आई सेड, ओके, एंड ट्रेड एज पर सिस्टम. अगर मैं बोल रहा हूँ कि निकल जाओ, ठीक है, आप अपना रिस्क रिवार्ड देख के, ऐसा जरूरी नहीं तुरंत निकल जाओ. यू वांट टू होल्ड, यू वांट टू ट्रेड एज पर सिस्टम, डू एज पर सिस्टम, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है. यू ऑलरेडी नो द लॉस, यू वांट टू प्ले विद दैट. लॉन्ग रन में तो वही करना होगा ना, यू विल डू पीसफुली. और अभी देख लो, लगा के छोड़ दो, मत देखो, जो हो रहा है हो रहा है. दैट इज द राइट वे, करेक्ट? मैं मैसेज देता हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड. भाई नो, किसी का बर्थडे है, पैसा लेना ही है तो लो भाई, मैंने बोल दिया निकल जाओ आज के लिए. उसके बाद कुछ भी होगा, वी डोंट नो. कि देखो कोई भगवान तो है नहीं, मैं भी नहीं हूँ, राइट? आई विल टेल यू टू एग्जिट विथ माय ओन, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस होता है कि हाँ यहाँ से रिवर्स कर सकता है या यहाँ से रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं, राइट? ओके भैया मैक्सिमम टाइम तो रिवर्स ही हुआ है. यस्टरडे ओनली आपने जब बोला उसके बाद हाफ से भी कम हो गया था प्रॉफिट. आज भी हो ही रहा था, लेकिन उसके बाद वो एक्चुअली एक न्यूज आ गया. मैं वो न्यूज ये आई वो कि एकदम आई थिंक से उसी से पॉजिटिव चला गया. हाँ, उसी वजह से वो जाता नीचे 100%, राइट? बट उस समय क्या हुआ मैं बता देता हूँ क्यों आज मार्केट गया. मार्केट नीचे जा रहा था, जाता है वो जो उसका टिपिकल बिहेवियर होता है. बट उसी समय में न्यूज आया कि ये जो HDFC बैंक और HDFC का मर्जर होने वाला है, वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रहा है. तो वो मार्केट के लिए बड़ा एक पॉजिटिविटी वाला. HDFC बैंक भागने लग गया उसकी वजह से, और HDFC भी भागे. तो HDFC बैंक जो है वो बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी है, फिर निफ्टी में भी है. फिर निफ्टी. तो उसके वजह से एकदम से खट 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 वो मार्केट ने रिएक्ट कर दिया. नहीं तो जो मैंने कहा था वही सही होता. तो नए लोगों को लग रहा होगा अरे क्यों निकलवा दिया, बट आपको अभी एक्सपीरियंस है नहीं. 19,600 पी छोड़ दिया था. हाँ, 19,600 पी छोड़ दिया था. 19,600 नहीं, लेकिन क्या होता है, मैं हमेशा बोलूंगा अगर निकल गए कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बाद जैसे ये मूव आने लगा तो आप पी सेल कर सकते हो मैनुअल. जैसे दैट्स व्हाट आई विल डू. बट जिस साइड में मोमेंटम आए उस साइड से दूर रहने का. लेकिन हाँ, फिर भी मैं यही बोलूंगा, मैनुअल मत घुसो. नो, वो ऊपर जाएगा, रिवर्स मार देगा, सब खराब कर देगा. बेस्ट सिस्टम है, आप सिस्टम पे टिके रहो. लॉस जितना होता है उतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा. प्रॉफिट अच्छा खासा जाएगा. ठीक है? Okay, good night. I hope you learned a lot today, right? Yes.